Hello and welcome to Sarkari Pariksha. This is Monica and I'm back again with another REIT exam video today. So guys, हम REIT English की बात कर रहे हैं, right? I hope आपके preparations बहुत अच्छे से चल रहे होंगे और आप बहुत ही ध्यान से अपनी पढ़ाई और रिविजन साथ साथ कर रहे होंगे. एग्जाम बहुत पास आने वाला है तो अपने अब तक जो जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने का टाइम तो आ ही गया है. So I'm back with another video on English pedagogy today, which is an important part of REIT exam. अब इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 सिलेक्ट कीजिए या लैंग्वेज 2 सिलेक्ट कीजिए, आपका 10 से 12 नंबर का पेडागोजी कहीं नहीं गया है, ठीक है ना. सो आपको ये पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसके क्वेश्चन समझना, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको आंसर करना है, सब कुछ अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम बैक विद अनदर टॉपिक ऑन इंग्लिश पेडागोजी, दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग. आई होप आपने ये पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा पहले. Schools में, if you remember, there used to be remedial students. We used to call them remedial students. What does remedial means? Remedial का मतलब क्या होता है? Remedial basically means to rectify, improve or remedy something. किसी चीज को improve करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, सही करना को हम remedial कह देते हैं. ओके, तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग से क्या कर रहे हैं हम? बेटरमेंट कर रहे हैं. किसका बेटरमेंट कर रहे हैं? जो स्टूडेंट्स नॉर्मल क्लासरूम में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या पीछे छूट जा रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस फॉर वेरियस रीजंस वीक चल रहा है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको बेटर करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक हियर. द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू गिव एडिशनल हेल्प टू pupils who for one reason or another have fallen behind the rest of the class, as I was saying, right? Children with learning difficulties have the same psychological needs and characteristics as other children. Understood? So, जिस भी reason से, because of some psychological issues या फिर they're simply not up to that IQ level जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और किसी भी वजह से जो स्टूडेंट्स पीछे छूट जा रहे हैं from the rest of the class, उनको वहां तक खींच के लाने के लिए, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, to help them out, we have remedial teaching or remedial classes. Okay, so remedial classes can be of anything. It can be of maths, reading or spelling. ठीक है, जिस भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है उस चीज में हम remedial teaching लेते हैं. Okay, remedial teaching is the teaching or instructional work carried out to provide remedial measures to help the pupils to get rid of their common or specific weakness. ठीक है, जो भी उनकी कॉमन वीकनेस होती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको रिमूव करने के लिए, हेल्प की करने के लिए हम रेमेडियल क्लासेस लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी हैव रेमेडियल टीचिंग. लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग. ठीक है, remedial teaching, pupils usually may have one or more than one of the following learning difficulties. One of the major reasons as to why we have remedial classes or remedial teaching is because of learning difficulties. Students में अलग अलग तरह की learning difficulties होती हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो we did challenges of teaching English in a classroom, right? So उसमें हमने different learning difficulties की बात करी थी. So different learning difficulties होती हैं स्टूडेंट्स में, different learning disorders होते हैं, उसकी वजह से they require special attention in separate groups और separately. तो उस चीज़ के लिए हमें remedial teaching की ज़रूरत पड़ती है. What are those learning difficulties? Let's have a look. Okay, poor memory. Some students are not able to remember stuff for a long time, right? Poor memory होता है. Short attention span and are easily distracted by other things. Concentration level कम है. Relatively poor comprehensive power, जो पढ़ लिया है उसको समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक है ना. Lack of learning motivation, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है ना. बहुत स्टूडेंट्स में ऐसी दिक्कतें भी होती है. Lack of self confidence and relatively low self expectation. Another thing is कि constant बिकरिंग से या कांस्टेंट लेटिंग गो डाउन से भी स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है. उन्हें लगता है अच्छा हमने 50 में से 20 स्कोर कर लिया, हम तो इतना ही कर पाते, हमारे लिए इतना ही बहुत था, राइट? तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसकी वजह से भी ढंग से लर्निंग नहीं हो पाती है. वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर नहीं होती है.
फेल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड मिक्स थिंग्स अप इजीली, जल्दी से नहीं समझ पाते हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है, जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं या फिर चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, एबीसीडी को से अनाज में मिक्स कर दिया टाइप्स समथिंग, है ना? तो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी गिवन फ्रॉम मैथमेटिक्स। Students often get confused between dividing and multiplying, right? They often end up multiplying what they need to be doing as division, right? So ये चीज़ हो जाती है। Have difficulty in understanding new or abstract concepts, जिस चीज़ को वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, जिस चीज़ को वो सामने से देख के नहीं समझ पा रहे हैं, उसको वो नहीं समझ पाते हैं इजीली, ओके। Need more time to complete assignments or tasks. Some students need more time than the others, ठीक है, वो इतनी जल्दी किसी चीज़ को complete नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा slow होते हैं। So all of these things are that students face, जिनको हमें diagnose करना चाहिए with a diagnostic test, okay, it is very important। हमारे स्टूडेंट्स में चिल्ड्रन में जो जो डिफिकल्टीज हो रही है, वी नीड टू परफॉर्म अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑन देम। इनमें से कौन सी दिक्कत वो फेस कर रहे हैं उसको डायग्नोस कीजिए, एंड देन वी नीड टू हैव अ रेमेडियल टीचिंग फॉर द सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। लेट्स हैव अ लुक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। सो हर एक बच्चा जो है डिफरेंट होता है इन द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, या फिर जनरल लर्निंग कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, सो एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। किसी का आईक्यू बहुत तेज होता है, वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, राइट? कोई मैथ्स में अच्छा होता है तो कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई सोशल साइंस में अच्छा है, कोई लैंग्वेजेस अच्छे से पढ़ लेता है, कोई को करिकुलर्स में बेटर होता है। तो एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट लर्निंग आर्क, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो इनका ये जो लर्निंग आर्क होता है वो डिफरेंट होता है, ये ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट चलता है, सबका ऐसे स्ट्रेट मोशन में नहीं चलता, कोई का ऐसे चल रहा है, कोई का ऐसे चल रहा है, अंडरस्टूड? सो दैट ग्राफ इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, ओके। तो डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज होती हैं और उनका अकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको दे हैव पुअर मेमोरी, पुअर लेवल ऑफ मोटिवेशन, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। उन स्टूडेंट्स के लिए हमें रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग, टू हेल्प दी स्टूडेंट्स आउट, ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम is to provide learning support to pupils who are not as good as their peers in performance, ठीक है। जो बाकी क्लास के साथ नहीं चल पा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं चल पा रहे हैं, बहुत ही पीछे चल रहे हैं, बहुत ही लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वी हैव रेमेडियल टीचिंग, ओके। With the help of school curriculum and teaching strategies, a teacher provides learning activities and practical experiences to pupils according to their abilities and requirements. So remedial teaching में क्या होता है कि not taking the entire class as a whole, instead जो बच्चा है, जो जिसको वो डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करिकुलम बनाया जाता है और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस प्लान की जाती हैं और पढ़ाया जाता है, ओके। Let's move on. Teacher also design individualized educational programs. This is very important. As I said, capabilities पे बेस होता है ये, कितना केपेबल है ये बच्चा, ठीक है, कितना कर लेगा, उसके पर्सनलाइज इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज पे बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जिसमें भी वो वीक फील कर रहा है, एज आई सेड, कोई मैथ्स में वीक है, कोई इंग्लिश में वीक है, तो उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों को टारगेट किया जाता है टू स्ट्रेंथन देम, ओके। टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल्स जेनरिक स्किल्स। जेनरिक स्किल्स क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें रेमेडियल टीचिंग में प्रोवाइड करनी चाहिए हैं, साथ साथ पर्टिकुलर एकेडमिक सब्जेक्ट से अलग, राइट। इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना चाहिए, उनको इंटरैक्शन सिखाना चाहिए, कम्युनिकेशन सॉल्व सिखाना चाहिए, एक्टिविटीज़ के थ्रू
प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखानी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ लर्निंग, सोचना सिखाना चाहिए कि आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू दो, राइट? क्रिएटिविटी एंड इन टुडेज वर्ल्ड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है हमारा रेमेडियल टीचिंग लेज द फाउंडेशन फॉर पीपल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है रेमेडियल टीचिंग में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। वी डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द रेमेडियल क्लासेस। ठीक है, और उनको प्रॉपर वैल्यूज दी जाए कि जो भी वो पढ़ रहे हैं या उनको सेपरेटली पढ़ाया जा रहा है, वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो सब समझाया जाए, एंड दे नीड टू बी मेड फ्यूचर रेडी। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स विच विल हेल्प लैंग्वेज टीचर टू डील विद स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। दीज आर, लेट्स हैव अ लुक। टीचिंग प्रेपरेशन, आप क्या कर सकते हो टू हेल्प स्टूडेंट्स इन विद लर्निंग डिफिकल्टीज? आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। आप प्रिपेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के हिसाब से। ठीक है, आपके स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत उनको आ रही है, उस हिसाब से आप अपना लेसन जो है वो प्लान करके रख सकते हैं, प्रिपेयर करके रख सकते हैं। डाइवर्स लर्निंग नीड्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, जो भी डाइवर्स लर्निंग नीड्स है, किसी को इनमें से किसी भी एक स्किल में प्रॉब्लम आ सकती है। किसी को सुनाई देके समझ नहीं आता है कि क्या बोला गया है, किसी को बोलने में दिक्कत आ रही है, किसी को रीडिंग में, किसी को राइटिंग में। तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर आप अपना लेसन प्लान बनाइए। डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज, डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज आपको डिजाइन करनी चाहिए दैट आर मोर इंटरैक्टिव, यू नो इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन करने चाहिए जो इंडिविजुअल पे फोकस करे, फोकस ऑन इंडिविजुअल। Instead of teacher oriented classroom, you need to make remedial teaching a student oriented classroom where students get to say कि हाँ ये करके हमें इतना समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के एक्टिविटीज, इफेक्टिव एक्टिविटीज यू नीड टू प्लान। नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग अप्रोचेस। टीचर शुड गिव कॉन्क्रीट एंड वैल्यूएबल एग्जाम्पल्स। कॉन्क्रीट एंड वैल्यूएबल एग्जाम्पल्स देने चाहिए व्हेनेवर यू आर टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देना क्या होता है कि जो आपके आसपास चीजें हैं, थिंग्स दैट यू कैन सी, थिंग्स द स्टूडेंट कैन ग्रास्प विद इन देयर आई साइट, जो उनको दिख रहा है, जो उनको सामने है, जो उनको समझ आता है, उन एग्जाम्पल्स को आप उन्हें दीजिए, rather than abstract concepts जो उनको imagine करने पड़े। ठीक है, so first you need to clarify them with concrete and valuable examples। तो उनको वो simple लगता है, easily समझ आता है। ठीक है, और अब मीनिंगफुल एक वो बन जाता है, illusion बन जाता है स्टूडेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेवी लैंग्वेज, ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए। तो स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, उनको क्या होता है, रिटन इंस्ट्रक्शंस इतने इजीली समझ नहीं आते हैं, इसलिए आप इजी लैंग्वेज में उन्हें समझाइए। शॉर्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस उनको दीजिए ताकि वो इजीली समझ सके वॉट एवर यू नीड टू गेट देम डन। ओके, नेक्स्ट आता है समराइज द मेन पॉइंट्स। जो भी आपने पढ़ाया है उसको एट द एंड ऑफ द लेसन समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप समराइज कीजिए और कीवर्ड्स को लिख दीजिए, की पॉइंट्स को लिख दीजिए, सो द स्टूडेंट नो इसको ही इलाबोरेट करके उसने आज पढ़ा है। ठीक है, सो उससे आप उसका ऑडियो एंड विजुअल स्किल्स भी डेवलप होगा कि उसने क्या पढ़ा है, कितना सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनहांस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। लर्निंग इंटरेस्ट बढ़ाना है, लर्निंग इंटरेस्ट बढ़ाना है एंड मोटिवेट करना है। ये कैसा होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हो इस टाइप की, पीयर ग्रुप एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हो ताकि जो स्टूडेंट है उनको फील हो कि दे नीड टू लर्न समथिंग और उनको मजा आए उस चीज को पढ़ने में या समझने में। ठीक है, दे जस्ट डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, करिकुलम अडेप्टेशन। सो रेमेडियल टीचिंग में आपको एक पर्टिकुलर टाइप का करिकुलम अडेप्ट करना चाहिए दैट इज मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। और आपने जो डायग्नोज किया है, जो भी प्रॉब्लम्स अपने रेमेडियल स्टूडेंट्स में डायग्नोज करी है, उनको
उस करिकुलम से हेल्प मिलनी चाहिए। ओके, दैट इज वेरी वेरी important when it comes to remedial teaching. Okay, teachers should adapt the curriculum to and accommodate the learning characteristics, abilities of pupils. As I said, जो भी आपने डायग्नोस किया है प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी एबिलिटीज है, उस हिसाब से आपका करिकुलम जो है मेंटेन होना चाहिए। शुड सेट सम इजी टेक्निक ऑब्जेक्टिव्स टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, इजी टेक्निक्स होनी चाहिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने इतना सीखना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, सीखना है, या 2 पैराग्राफ पढ़ना सीखना है, या 10 प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स करनी है आज, तो ईजी रखिए उस चीज को, पूरे फुल फ्लेज्ड बुक्स या पूरे चैप्टर्स नहीं रखने हैं। ओके, टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय टेक्स्ट बुक्स। रेमेडियल टीचिंग में टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय टेक्स्ट बुक, बट रादर अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी डेवलप, जहाँ पे आप एक्टिविटीज के थ्रू, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ाई करवाएं। ओके, स्कूल शुड क्लासिफाई द टीचिंग कंटेंट इनटू कोर एंड नॉन कोर लर्निंग। कोर एंड नॉन कोर लर्निंग करने से क्या होगा कि आप ये मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आप इम्पोर्टेंस दीजिए, और नॉन कोर लर्निंग करने से आप वेरियस एक्टिविटीज या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं। Okay, core learning aspects require in-depth studies, as I said, and application teaching, whereas materials in the advanced and learning aspects may be appropriately selected for teaching. Teachers should be encouraged to adopt recommendation or cross-curricular teaching. डिफरेंट टीचर्स से रिकमेंडेशन ले सकते हैं आप अपने आप में, और एक दूसरे का करिकुलम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के मेथड्स ऑफ टीचिंग भी लेके समझ के आप अडॉप्ट कर सकते हैं, टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, टू मेक योर टीचिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टूडेंट्स। टीचर्स शुड बी केपेबल टू डिजाइन मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, which could be taken from the internet, newspaper, magazines and references. So you should be able to design certain study materials of your own according to the students you are teaching. उनके capabilities पे base आप study materials को design कर सकते हैं, आप help ले सकते हैं from different sources like the internet, newspaper, magazines, etc. Okay, so I hope this is clear. Next आता है आपका strategies of remedial teaching, which is very very important. अगर हम रीड की बात कर रहे हैं तो आपसे इसका एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है आपका। Some of the strategies that teacher must follow in remedial teaching are discussed below. First आता है आपका individualized educational program, हमने पहले भी करा भी है थोड़ी देर पहले, ये IEP शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसको याद रखने, आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम में क्या होता है, इट एम्स टू डेवलप इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव, एक बच्चे की नीड्स को पूरा किया जाता है, एक प्यूपल की नीड को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो उसको कितनी प्रॉब्लम है, कितनी उसको लर्निंग प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, उसका कितना पोटेंशियल है, उसको समझ के हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इट शुड इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, एज आई जस्ट सेड कि आज के दिन में 2 पैराग्राफ करने हैं, फिर 1 मंथ में इतना कंप्लीट करना है, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, ठीक है। टीचर्स मस्ट इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क एंड ट्राई टू गैदर ओपिनियंस ऑफ प्यूपल्स फॉर इम्प्रोवाइजेशन एंड बेटरमेंट, ठीक है। सो टीचर्स शुड हैव अ बोलते हैं ना आप, बेटरमेंट के लिए आप रिव्यू रख लीजिए अपना, ठीक है। सो टीचर कैन कीप अ रिव्यू डे और समथिंग वेर यू गेट रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि आपने जो पढ़ाया वो उन्हें कितना समझ आया और क्या कमी रह गई, या फिर आप क्या बेटर कर सकते थे उस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। सो यू कैन गेट अ रिव्यू ऑफ दैट, ओके। सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका पीयर सपोर्ट ग्रुप। दिस इज ऑल्सो वी हैव समथिंग वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, कि आप सेम IQ वाले स्टूडेंट्स को या सेम अंडरस्टैंडिंग वाले स्टूडेंट्स को सेम ग्रुप्स में रख के स्टडिंग करवा सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे से भी सीख सकें और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन ना हो कि दूसरा बच्चा उनसे बेटर कर रहा है, ठीक है। सो दिस वुड हेल्प इन गेनिंग नॉलेज, उनको हेल्प मिलेगी इस चीज से। नेक्स्ट आता है आपका रिवॉर्ड स्कीम। रिवॉर्ड स्कीम अगेन इज समथिंग दैट वर्क्स वेरी नाइसली विद स्टूडेंट्स, और स्कूल्स में ऑफन होता भी है, आपको होता है ना, आपने फर्स्ट प्राइज जीत लिया, राइट,
तो वो प्राइज विनिंग स्कीम जो होती है दैट इज कॉल्ड योर रिवॉर्ड स्कीम। जो जो स्टूडेंट्स जो है जो जिस भी चीज़ में अच्छा कर रहा है, जिस भी चीज़ में बेटर कर रहा है, उनको आप सेट एंड क्लियर स्पेसिफिक टारगेट्स दीजिए और अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स दीजिए, ठीक है? एंड देन गिव देम इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स जो उनको अट्रैक्ट करे, जो उनको मोटिवेट करे टू वर्क मोर। रिव्यू एंड रिवाइज द रिवॉर्ड स्कीम रेगुलरली। चेंज भी करते रहना ज़रूरी है, सेम चीज़ नहीं दे सकते हैं। इनवाइट पेरेंट्स गार्जियंस टू हेल्प चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर वर्क, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स एंड गार्जियंस का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ताकि आपको ये भी पता चले और उनको भी पता चले उनका बच्चा कहाँ लैग कर रहा था और कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं किन किन चीज़ों से। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग प्यूपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज ना होते हुए भी कुछ सर्टेन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? टीचर शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग व्हेन डीलिंग विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ pupils. So ऐसे केस में क्या करना चाहिए? Always observe the performance of pupils in class and their behavior in groups. Observe कीजिए, diagnose कीजिए कि problem क्या है, ठीक है? Establish close relationship with pupils, develop mutual trust and listen carefully to what they say. उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। Students are at an age where they are growing, they are constantly facing different changes, right? So instead of just constantly making them listen, it's imperative for us as teachers to listen to them also, ठीक है? So whatever they are facing, whatever there is a problem, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए, एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए जहाँ पर वो आपके पास आ सके अपने प्रॉब्लम्स को लेकर और आप उन्हें ध्यान से सुने भी। Help pupils understand the effect of their behavior on the other as well as their own self. वो जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्शंस वो ले रहे हैं, जैसे भी वो बिहेव कर रहे हैं, उसका उन पर क्या असर हो रहा है और दूसरे लोगों पर, आसपास के लोगों पर क्या असर हो रहा है, उन्हें वो समझाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? Keep in close contact with parents to find out the cause of pupils behavior problems. See, this is very important. अक्सर जो भी behavioral problems होती हैं वो होम environment या फिर आसपास के environment की वजह से ही आती हैं। तो it is very important that you understand why the student or the pupil is behaving in a certain manner, और उस चीज़ को आप उनको बैकग्राउंड से, होम से भी कनेक्ट करें ताकि आप समझ सके पूरी तरह से उस प्रोसेस को। तो आपको पता होगा कि पेरेंट्स से बात करके कि क्यों ऐसा बिहेवियरल चेंज आप फेस कर रहे हो एज इन अ स्टूडेंट। ओके, हेल्प पीपल्स बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी सेल्फ इमेज। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हमने स्कूल्स में ऑब्जर्व किया है ना, व्हेन अ स्टूडेंट इज गेटिंग लेस मार्क्स और समथिंग, सो उसको बहुत ही डिग्रेड करके बात करी जाती है, बहुत ही नीचा दिखाया जाता है कि नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे, पनिश किया जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स यूज किए जाते हैं। सो दैट इज रॉन्ग ऑन अनदर लेवल ऑल्सो। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने को लेके उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उनकी सेल्फ इमेज डिग्रेड हो जाती है, राइट? उन्हें लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, व्हाई शुड वी इवन अटेम्प्ट टू डू इट आफ्टर अ व्हाइल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज नॉट डन। वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, उनको एनकरेज करना चाहिए। ओके, नॉट इस टाइम ये हो गया, कोई बात नहीं। सी, इवन आई हैड अ टीचर इन स्कूल, to be very honest, who would say that we should never use the term fail. हमें किसी के लिए भी fail word का use नहीं करना चाहिए। They have not failed. They have simply missed some marks. That's it. Right? Fail is a very big concept. Understood? So we need teachers like that, obviously. Give positive reinforcement to pupils' good behavior and do not pay undue attention to their misbehavior. ठीक है? So अगर वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए व्हेनेवर दे आर बिहेविंग नाइसली, ठीक है? और ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए उनके मिसबिहेवियर पे। आप रखो, बट हर चीज़ पे कमेंट करना या उनको हर बात पे टोकना ज़रूरी नहीं है। सो दीज आर सम स्ट्रैटेजीज ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगी इन गेटिंग अ स्टूडेंट्स लर्निंग मच बेटर and much accomplished. Okay, so I hope this concept is clear to you people,
एंड आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको ये टॉपिक समझ आया हो और आप इजीली पढ़ पाएँ इस टॉपिक को। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो रीट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इस टॉपिक से। A remedial teaching syllabus should be based on the teacher's impression of language difficulties, students' interest in learning language, an analysis of errors made by learners, and analysis of the future needs of the learners. So C is the answer. हमने starting में discuss किया था ना, आप errors से diagnose कीजिए, right? We need to have a diagnose test कि क्या errors है, क्या दिक्कत आ रही है, and then we need to decide the teaching syllabus. Remedial teaching pays greater attention to students who are proficient in English, are likely to go abroad, have fallen behind others, are irregular in attending classes. So C is the answer. जो proficient है उनको क्यों ही करेंगे, right? Likely to go abroad मतलब they are very proficient themselves, are irregular in attending classes, they are just not attending classes, punctuality की दिक्कत है, have fallen behind others, these are the students that require remedial teaching. Next, let's have a look. The purpose of remedial teaching is to introduce new language items, test recently taught items, teach again the language items not properly learned. So C is the answer. जो आपने पढ़ा दिया है उसको दोबारा पढ़ाया जाता है क्योंकि सामने वाले बच्चे को या प्यूपिल को वो समझ नहीं आ पाया है, ठीक है। Which of these is the strategy of remedial teaching? Action research, program test, both A and B. Both A and B is the answer. दोनों चीज किए जाते हैं, हम प्रोग्राम टेस्ट भी करते हैं एंड एक्शन रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रेमेडियल टीचिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपके 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, अभी तक हर साल आए हैं. सो प्लीज़ प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. और यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हैवी क्वेश्चंस नहीं है, आपने देखा है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा दैट वी हैव लर्नड. Okay, so I hope this was clear to you people. Thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe to our channel and have a nice day.